Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everybody. This is once again another online lecture, Professional Practice, Section B. We were talking about contemporary issues, and until the last lecture we had discussed about communication. As a contemporary issue, we have completed the discussion on communication. Now we are going to discuss on two very important topics, and they are very controversial as far as calling them contemporary issues is concerned. We are going to talk about innovation and entrepreneurship. So when we finish the lecture today, hopefully, inshallah, we'll be able to understand the meaning and importance of innovation and entrepreneurship. We're going to we'll be understanding what the famous innovators and successful entrepreneurs have been. In general, the innovators and entrepreneurships, and in special, we are going to talk about innovators and entrepreneurships in our field of computer science and software engineering. By the end of the day, we'll also make sure that we understand what it takes to be an entrepreneur. The famous people who are famous for their innovations and entrepreneurships, they were not famous all through their life. They were some ordinary people. Most of them were not even wealthy people. They were just merely meeting their ends. But they struck upon some ideas, and then they implemented them, and they became not only rich, they became very famous. We're going to talk about them. And we are also going to talk that we are no exception. The people among us are students. Brilliance is there. They are brilliant. They can think better things, and they can become innovators and entrepreneurs. At the end of the discussion, we'll also take a look why we considered innovation and entrepreneurship as a contemporary issue. What are the controversies, or what are the issues that surround innovation and entrepreneurship, especially entrepreneurship? So let's get going with the discussion. First, the discussion about innovation. What is an innovation? Innovation is when you apply your thinking process and you create something which is very much novel, very much new. It does not exist before when you start thinking on it. You call it innovation. It can be an idea, it can be a concept, it can be a methodology, or it can be a product, it can be a technology, it can be anything. It can be a solution to a very big problem. So the basic thing is that whatever you think, it should be something new. Innovations, the main purpose of innovations is that you want to bring out convenience and comfort in the lives of the clients, the users. If you are a professional, you ought to be thinking about providing convenience, providing comfort to the users through your products and your services. इनोवेटर्स का हमेशा यही सोच होती है, उनका यही प्लान होता है कि वो अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस के जरिए लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, और इसी मकसद के लिए वो हमेशा लगे रहते हैं कोई नए आइडियाज सोचने में, नए कॉन्सेप्ट्स, मेथोडोलॉजीज या कोई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में. तो पहला पर्पस जो है
इनोवेशन का वो ये है कि यू ब्रिंग आउट कन्वीनियंस ऑफ यूज और एक्सेस इन योर प्रोडक्ट्स. Either you are producing some products, you are manufacturing them, or you are preparing services for your clients. So it can be any one of these things. So by innovation, you intend to bring convenience in the use of your products or services. कन्वीनियंस का मतलब होता है सहूलत. अगर आप उर्दू में इस लफ्ज का कोई नियर ट्रांसलेशन ढूंढें तो कन्वीनियंस का मतलब है सहूलत. यानी आप अपने प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में लोगों के लिए कोई सहूलत, आसानी पैदा करना चाह रहे हैं. और दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट में कोई कंफर्ट या फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करना चाह रहे हैं. कंफर्ट को अगर आप उर्दू में इसका कोई मतलब तलाश करें तो इसका मतलब होता है आसाइश. और इसका एक दूसरा मतलब सादा ज़बान में ये हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर आसानी पैदा करना चाह रहे हैं, लोग उसको यूज़ करके आसाइश में रहें या आसानी में रहें. और एक मकसद ये हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन के ज़रिए फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करना चाह रहे हैं. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि यू प्रोवाइड more and more options through your product to the customer or the user. ये नहीं बजाय इसके कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक ही लाइन पे कोई काम कर रहा हो, आप उसमें वेरिएशंस या ऑप्शंस या चॉइसेस पैदा कर देते हैं. अब ये तो दो चीजें हैं, कन्वीनियंस भी और कंफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी भी, जो कि टुवर्ड्स द कस्टमर है. यानी आप कस्टमर को ये आइडियाज प्रोवाइड करना चाहते हैं. लेकिन एक मकसद ये भी हो सकता है कि आप इनोवेशन के जरिए अपनी भी कोई ना कोई एडवांटेज या बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, प्रोवाइडेड कि आप पहले वाले दो पर्पसेस पूरे कर चुके हों. तो एक पर्पस ये भी हो सकता है कि इंसान अपने आप को ज्यादा बेहतर, खुशहाल बनाना चाहता है, यानी अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहता है. जिस तरह हम वो सी प्लस प्लस में देख चुके हैं ना कि प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीज. तो आप अपने बिजनेस के रेवेन्यूज में, अपनी इनकम में इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये होगा कि जब आप अपने प्रोडक्ट में कोई एक नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया लेके आएंगे, या तो प्रोडक्ट इनोवेटिव है या आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई नई इनोवेशन ऐड की गई है, जिद्दत ऐड की गई है, तो उर्दू में आप इनोवेशन को कह सकते हैं जिद्दत. ऑल्दो कि ये बहुत कम ही हम यूज कर रहे होते हैं वर्ड आम जिंदगी में, लेकिन बहरहाल कहीं पे अगर आप इनोवेशन को लेके जाना चाहें, इनोवेशन का एक नतीजा ये भी होता है कि आप जो इनोवेटर्स होते हैं वो कुछ नई चीजें इन्वेंट भी कर लेते हैं, या कोई ना कोई नई डिस्कवरी उनके सामने आ जाती है. तो ये इन्वेंशंस और डिस्कवरीज भी असल में इनोवेशंस होती हैं. लेकिन हम इस वक्त इन्वेंशंस की ट्रू सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेसेस में जिनमें आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बना रहे हैं, यू आर प्रोफेशनल्स. तो आप इन्वेंशंस और डिस्कवरीज अगर कोई कर भी रहे होंगे तो वो बेसिकली अपने प्रोडक्ट और अपने कस्टमर के लिए कर रहे होंगे. तो वापस आते हैं पर्पस पे. एक तो पर्पस ये है इनोवेशंस का कि आप कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं, सहूलत, आप कंफर्ट या आसाइश प्रोवाइड करते हैं इन योर प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर. और दूसरा ये कि इनडायरेक्टली आपका मकसद ये होता है कि यू आर जनरेटिंग मोर इनकम फॉर योर सेल्फ. क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट में इनोवेशन होगी, आपके सर्विसेज में इनोवेशन होगी, तो आपकी सेल्स वो बढ़ेंगी एज कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स, और फिर आपकी रेवेन्यू और इनकम में इजाफा होगा. दूसरा एक पहलू जो कि इनोवेटर के लिए है, बट नॉट एग्जैक्टली फॉर द कस्टमर्स,
लेकिन ये एक रीप्ड बेनिफिट है, एक आप समझ लें बाय प्रोडक्ट है कि आप रेवेन्यू के साथ साथ अपनी रिप्यूट में भी इजाफा कर रहे होते हैं। पर्सनल रिप्यूट भी हो सकती है, और ये रिप्यूट हो सकती है रिगार्डिंग योर बिजनेस, आपके बिजनेस या आपकी कंपनी की गुडविल में भी ये चली जाती है। लोग यही कहते हैं कि जनाब ये कंपनी है या ये लोग हैं जो कि कस्टमर के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एक इंटरनल फीलिंग है, हर शख्स जब भी कभी कोई नई चीज वो बनाता है तो देयर इज ऑलवेज एन इंटरनल सेटिस्फेक्शन। उसको एक खुशी का या एक इत्मीनान का एहसास होता है, उसे एक फतह का एहसास होता है। टू बी विक्टोरियस इज अ वेरी ग्लोरियस फीलिंग। और ये वो एनर्जीज इंसान में पैदा कर देती है कि इंसान इन एनर्जीज के साथ मजीद नए काम करता है, मजीद मेहनत करता है। अब जब भी कोई इनोवेशन होती है तो उसका नतीजा ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कुछ ना कुछ इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली चीज जो आप अपने सर्विस या प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं वो है उसकी वैल्यू। वैल्यू का मतलब है उसकी यूजेज और उसकी इंपॉर्टेंस। प्रोडक्ट जिस हद तक पहले कभी यूज होता था, इनोवेशन के बाद अब वो उससे कहीं ज्यादा उसकी यूजेज बढ़ गई, यानी उसका एक्सपेंस या उसका जो स्पैन है वो बढ़ गया। तो आप इसे कहते हैं एडिंग वैल्यू टू अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, यानी उसका इस्तेमाल, उसकी कदर, उसकी अहमियत बढ़ गई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्टेट। मजीद ये कि ये भी हो सकता है कि आप किसी सर्विस या प्रोडक्ट की बजाय इनडायरेक्टली उन प्रोसेसेस में कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं, या उन प्रोसेसेस के पीछे जो प्रोसीजर्स या मेथड्स चल रहे होते हैं उनमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं जिनका इनडायरेक्ट तरीके से असर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पे भी। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रोसेस का क्या मतलब होता है। प्रोसेस का मतलब होता है इन ऐसी एक्टिविटीज जो कि इनपुट्स को आउटपुट्स में बदलती हैं। whenever there is a set of activities or actions that convert inputs into outputs, you call it a process। तो इंडस्ट्री में, चाहे वो कोई भी दुनिया की इंडस्ट्री हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी हो सकती है, वहां पे आप जहां कहीं भी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट्स में बदल रहे होते हैं, डिलीवरेबल्स में बदल रहे होते हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसीजर का मतलब होता है द मेथड। इसके लिए आप साइंस, कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम का लफ्ज भी यूज करते हैं। एल्गोरिदम का मतलब भी यही होता है, मेथड। तो कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप एक प्रोसीजर की शक्ल में लिख देते हैं, और फिर बाद में जब उन स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है तो आप कहते हैं कि जी दैट इज अ प्रोसेस। तो ये दोनों लफ्ज आपस में बड़ी हद तक कनेक्टेड हैं। इन ऑर्डर टू रन अ प्रोसेस यू नीड टू हैव अ प्रोसीजर फॉर दैट प्रोसेस। तो आप ना सिर्फ ये कि सर्विस और प्रोडक्ट में डायरेक्टली वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं इनोवेशन के जरिए, बल्कि इनोवेशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि जो आपके प्रोसीजर्स को और उनसे चलने वाले प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर देते हैं, उनकी यूजेज, उनका स्पैन वो एक्सटेंड कर देते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो कि इनोवेशन का टारगेट या ऑब्जेक्टिव होती है, आप उसे पहले से ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। इफेक्टिव का भी तकरीबन वही मतलब है जो कि यूजेज या स्पैन का है, यानी जो प्रीवियस उसका इम्पैक्ट था आप उसे ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं या एक्सपैंड कर देते हैं। मे बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स। तो अब वो जो आपका प्रोडक्ट है या आपके प्रोसेस या प्रोसीजर्स हैं
वो पहले से ज़्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं और पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इफेक्टिव का एक मतलब ये भी। तो अब तक जितनी डिस्कशन हुई है इसमें आपको अगर कुछ चीज़ मुश्किल लगी हो या कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो आप साथ साथ उसके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो एवरीबॉडी विद मी, लोगों को समझ आ रही है सबको? जी भाई, यस सर, आ रही समझ। कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? चलिए अब बात को और थोड़ा सा पुरअसर बनाते हैं, उसको इफेक्टिव बनाते हैं बाय टॉकिंग अबाउट सम एग्जांपल्स। बट बिफोर मूविंग टू दैट, आप इसी स्लाइड पे थोड़ा सा लाइट से शेड में आप देख रहे हैं कि हमारे फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में, कौन से एरियाज होते हैं, कौन से डोमेन्स होते हैं जहाँ पे इनोवेशंस होती हैं। हर जगह होती हैं लेकिन कुछ खास नाम, लाइक हमारे फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में SDLC के अंदर इनोवेशंस होती हैं, होती रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई प्रॉपर लाइफ साइकिल नहीं होता था, लेकिन फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट्स हैं जो, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इनोवेट करना शुरू किए। फॉर एग्जांपल, आपको जो भरपूर तौर पे एक याद है वो है वाटरफॉल मॉडल। ये बिल्कुल एक लीनियर सा लाइफ साइकिल होता है जिसमें आप एक फेज में से अगले फेज में जा सकते हैं लेकिन प्रीवियस फेज में आप वापस नहीं जा सकते। ये आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक पहले भी आपने ये देखे हुए। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि जो वाटरफॉल मॉडल है या लीनियर लाइफ साइकिल है, उसमें नए से नए मेथड्स का, मेथडोलॉजीज का इजाफा हो गया, लाइक स्पाइरल मॉडल। ये स्पाइरल मॉडल बेसिकली एक मेथडोलॉजी की एक पूरी साइंस है जिसको आप कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड। यानी बजाय इसके कि वो जो स्लो प्रोसेस है वाटरफॉल मॉडल का, आप जल्दी जल्दी अपनी एप्लीकेशंस डिजाइन और डेवलप करते हैं, तो इस वजह से आप उसे कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो स्पाइरल मॉडल भी इसी तरह का एक रैपिड डेवलपमेंट मॉडल है। इसके अलावा बॉक्स मॉडल है, आजकल और बहुत सारे नए नाम हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल है। तो ये सारे के सारे मॉडल्स, जो बुनियादी मॉडल था वाटरफॉल मॉडल, ये उन्हीं की एक्सटेंशंस हैं, उन्हीं में वैल्यू एडिशन की गई है, यानी इनोवेशन के जरिए की गई। फिर उसके बाद एआई का फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे तो कुछ 40-50 ईयर्स से ये एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सी इनोवेशंस हुई हैं। एआई में जितनी भी इनोवेशंस होती हैं वो एल्गोरिदम्स की होती हैं। नए से नए एल्गोरिदम्स आप डिवाइस करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद ऊप्स है, ऊप्स के अंदर, ऊप्स बजाते खुद भी एक इनोवेशन है प्रोग्रामिंग की फील्ड में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद इनोवेशंस होती हैं डिज़ाइन पैटर्न्स में और आर्किटेक्चर पैटर्न्स में। यानी ये कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि आपको प्री डिफाइंड सोल्यूशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देते हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं प्री डिफाइंड, और आप उसी के ऊपर फिर उसके कंपोनेंट्स की कोडिंग करते हैं। तो जिन लोगों ने डॉट नेट में डेवलपमेंट की हुई है वो MVC और इस नौयत के और कई सारे पैटर्न्स यूज कर चुके हैं। फिर इनोवेशन का एक एरिया वो भी है जिसमें आप वर्चुअल रियलिटी, और फिर उसके बाद इनोवेटेड है ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, AVR, या उसको सिंपली AR भी कहते हैं। मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुई है। मशीन लर्निंग में आप दोनों तरह की लर्निंग के मुतलिक बात करते हैं कि ह्यूमंस को मशीन्स के लिए किस तरह से अडेप्ट होना है, लेकिन मोर देन दैट, मशीन लर्निंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव कि आप अपनी मशीन्स यानी कंप्यूटर्स को, हार्डवेयर को यूजर्स के यूजेज के हिसाब से कितना बेहतर बना देते हैं। तो हार्डवेयर के साथ साथ इसमें सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर यूजर की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप उसे लर्नेबल बनाते हैं।
अब इसमें और ज्यादा भी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन फिलहाल इतना टाइम नहीं है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं। जस्ट जीयूआई की डिजाइनिंग तक बात नहीं रही, लेकिन जो ह्यूमन एस्थेटिक्स हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसमें भी काफ़ी लर्निंग हुई है और इनोवेशन हुई है। और नतीजा ये है कि आपके सामने बेहतर हार्डवेयर और बेहतर सॉफ्टवेयर वो बनना शुरू हो जाते हैं। टच स्क्रीन्स का फील्ड है जो बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था। अब ये कोई इतना भी नया नहीं रहा, अब इसलिए अब कोई नई टच स्क्रीन भी अगर आती है तो वो डायरेक्टली इनोवेशन नहीं होगी। लेकिन ये टच स्क्रीन्स दे आर अराउंड फॉर अबाउट 20 years और मे बी मोर देन दैट। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी तो दे वर इनोवेशंस। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है जो तकरीबन पिछले 8-9 साल से इस पर काफ़ी काम हो रहा है और फ्यूचर में भी इसी का ही है। तो इसमें बहुत सारी इनोवेशंस लगातार होती जा रही हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जल्दी जल्दी से। तो लाइक इनोवेशंस में जो टॉप ऑफ द लिस्ट मैंने लिखी हुई है वो सेल फोन की इनोवेशन है। और ये कोई इतनी नई बात भी नहीं है, कुछ पुरानी बात है। ये 1973 में सेल फोन सबसे पहले बना था। मैं ये नहीं कहूँगा कि इजाद हुआ था, इनफैक्ट सेल फोन जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, वायरलेस की टेक्नोलॉजी, रेडियो वेव्स, तो वो तो पहले से एग्जिस्ट करते थे। वो तो इवन 1900s या शायद उससे भी पहले, कोई 5-10 साल पहले, 1800 समथिंग में ये रेडियो वेव्स डिस्कवर हो गए थे, इन्वेंट हो गए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इन्हें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया गया। लेकिन फॉर पर्सनल यूज़, कि जनाब जो पर्सनल कम्युनिकेशन लोगों ने करनी होती है टेलीफोन के ज़रिए, वो अनटिल 1973 किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अगर किसी ने सोचा एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को एक नए अंदाज में, एक ऐसे फ़ोन की शक्ल में कन्वर्ट किया जो कि बहुत ईजिली आप अपनी पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं। वैसे ये बात है कि शुरू शुरू में जो सेल फोन बने थे, दे वर नॉट फिटिंग टू द पॉकेट्स, लेकिन एटलीस्ट उन्हें पॉकेट फोन्स कहा जाता था इन द सेंस कि यू कैन पिक देम एंड यू कैन मूव अराउंड बाय कैरिंग देम। फिर वक्त के साथ साथ वो इस काबिल हो गए कि जी आप अपने पॉकेट्स में सेल फोन्स को रख के मूव कर सकते थे, अब मूव कर सकते हैं। तो इनोवेशन थी सेल फोन्स की जो कि 1973 के अराउंड वो एट्रीब्यूट की जाती है। वो कहा जाता है कि जी मार्टिन कूपर नाम का जो शख्स है उसने, तो ये जिस कंपनी में काम करता था वो है मोटरोला। और मोटरोला वो कंपनी है जिसने कम्युनिकेशन डिवाइसेस में और कंप्यूटर्स में भी प्रोसेसर्स की शक्ल में काफ़ी इनकी इन्वेंशंस हैं और इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। और फॉर द फर्स्ट टाइम सेल फोन के लिए भी इन्होंने ही इनोवेशन की। देन अनदर इम्पॉर्टेंट इनोवेशन दैट केम इन द फील्ड ऑफ communications, in the field of computers, in the field of telecommunications, वो था फाइबर ऑप्टिक्स की इन्वेंशन। और फाइबर ऑप्टिक्स की जो इन्वेंशन या इनोवेशन है बेसिकली 1950s में ये हो चुकी थी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेशक बहुत बाद में आती हुई है। और ये एक साहब है नरेंद्र सिंह, जो कि नाम से इंडियन, लेकिन ये ही वाज एक्चुअली एन अमेरिकन। अमेरिका में ही वो पले बड़े थे। फिर उससे पीछे अगर आप चले जाएं तो इनोवेशंस हैं ट्रांजिस्टर्स की शक्ल में। वो जो पुराने ज़माने की ट्रायोड ट्यूब्स होती थी, जिनको चलाने के लिए पहले उन्हें बिजली प्रोवाइड करके उन्हें पहले गर्म होना पड़ता था, फिर कहीं वो अपनी थर्मियोनिक एमिशन स्टार्ट करती थी। लेकिन फिर 1940s के एंड पे किसी ने इनोवेशन की। 2-3 लोग थे जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। दे वर एट बेल लेबोरेटरीज और उन्होंने इनोवेशन की थी ट्रांजिस्टर के नाम से। तो आप लोगों ने वो ट्रांजिस्टर के मतलब पढ़ा भी हुआ है। ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन के बाद एक नया चैप्टर, एक नया रास्ता खुल गया था नई इनोवेशंस का। ट्रांजिस्टर्स की बेस जो थी वो पीएन जंक्शन थे, यानी डायोड्स। तो डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स की मदद से जो इनोवेशन हुई, नेक्स्ट इनोवेशन, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ आईसी।
इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और यही इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो कि बिलाखिर आपको प्रोसेसर्स की शक्ल में भी नज़र आते हैं। यही इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो कि आपको कंट्रोलर्स की शक्ल में भी नज़र आते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो उसमें आप इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बजाते खुद भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, बहुत ही इम्प्रोवाइज्ड को क्वालिफाइड किस्म का। फिर इनोवेशंस में एक बहुत ही अच्छी इनोवेशन वो थी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जिसका नाम है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये 1970s में इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन अनटिल दी मिड 80s इस पे कोई इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था। तो 80s के मिड में इस पे काफ़ी काम हुआ, और इसी के नतीजे में इंट्रानेट्स, लोकल नेटवर्क्स, और फिर बिलाखिर इंटरनेट। ये प्रोटोकॉल बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इसेंशियल चीज़ है। अगर आपने बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी कंप्यूटर कम्युनिकेशन करनी है या वॉइस कम्युनिकेशन भी करनी है, तो वो 1970s में वैसे तो ये इनोवेशन आ चुकी थी, लेकिन 1980s के मिड में इसके ऊपर बाकायदा इंडस्ट्री का काम भी हुआ, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स भी इस पे बने। द नेक्स्ट इनोवेटर इज एलन एमिटेज। ये साहब हैं जिन्होंने फर्स्ट वेब सर्च इंजन बनाया। इंटरनेट तो वैसे 1980s के एंड पे दुनिया में ये काफ़ी इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था, लेकिन शुरू में ये इंटरनेट ऑफलाइन इंटरनेट होता था, ज़्यादातर ईमेल्स वगैरह और थोड़े लेवल पे जो कम्युनिकेशन है। लेकिन एक क्वालिफाइड इंटरनेट के तौर पे ये 1990s में चला, और उस वक्त ज़रूरत महसूस की किसी शख्स ने कि जी इंटरनेट के ऊपर जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, सर्वर्स हैं, उन पे जो इंफॉर्मेशन पड़ी होती है उनको सर्चेबल होना चाहिए, लोग उसे सर्च करके व्यू कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो फिर वो आइडिया एक नए आइडिया के तौर पे उस एक शख्स एलन एमिटेज के ज़हन में आया, और उसने फर्स्ट वेब सर्च इंजन बनाया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शुरू में इस वेब सर्च इंजन का नाम सिर्फ यही था, वेब सर्च इंजन। आजकल तो ये वेब सर्च इंजन के आपको ट्रेड मार्क नेम भी अब नज़र आते हैं, वही नज़र आते हैं, और 2-3 ही हैं जो काफ़ी मशहूर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर गूगल का आप जो सर्च इंजन यूज़ करते हैं, क्रोम, उसके अलावा याहू सर्च भी आप यूज़ करते हैं, आप अल्टा विस्टा भी यूज़ करते हैं, एंड नंबर ऑफ अदर्स। इवन के अब हमें उन सब के नाम याद भी नहीं है, इसलिए कि हम एक या दो जो मोस्ट पॉपुलर बहुत ही एफिशिएंट किस्म के ब्राउजर्स होते हैं उन्हें हम यूज़ कर रहे होते हैं। देन कम्स अनदर इनोवेशन, ऑल्दो कि ये टाइम लाइन में पहले कहीं एग्जिस्ट करती थी, लेकिन मेरी लिस्ट में ये यहाँ पे है। ये चार्ल्स बेबेज है, जिसके मतलब आप अपने पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में, कि ये चार्ल्स बेबेज कहा जाता है कि मॉडर्न दौर में कंप्यूटर का मुजिद है, फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन इसने जो कंप्यूटर बनाया था वो नाम का कंप्यूटर था, देखने में अगर आप कहीं उसको देखें भी तो आपको देखने में वो कंप्यूटर कम और कोई मशीन ज़्यादा लगेगा। तो बिल्कुल इसी तरह की बात है, उसने जो बनाया था वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसको कहते थे एनालिटिकल इंजन, बट दैट वाज वे बैक इन 1812। और तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम का कोई वजूद नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर बन चुकी हुई थी, लेकिन वो भी कमर्शियल नहीं थी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका कोई वजूद नहीं था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड एस्टेब्लिश हो गया सेमीकंडक्टर का ख़ास तौर पे, तो फिर ये एनालिटिकल इंजन को ट्रांसफॉर्म किया गया जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के कंप्यूटर में। तो वो नाम भी आपने पढ़े हुए हैं, पैस्कल के नाम उसमें काफ़ी है। ओके, ये उस दौर में इनोवेशन थी। आज के दौर में आपको बड़ी फरसूदा सी चीज़ लगेगी, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से आप सोचें तो इट वाज अ रेवोल्यूशनरी थिंग, अ न्यू आइडिया। फिर ईमेल्स को हम इस लिस्ट में यहाँ पे देखते हैं। ईमेल्स जो हैं वो 1971 में
इजाद हो चुकी थी। और ये बड़ा मशहूर, आपने अपने स्टडी में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, कि जो सबसे पहले इंटरनेट था उसकी बेसिक्स आई थी आरपानेट से। तो आरपानेट जो है वो एक प्रोपराइटरी, आप समझ लें, इंटरनेट था, लेकिन बाद में उसको कमर्शियल भी किया गया। और फिर उसी में से आजकल जो एग्जिस्ट करने वाला इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब, वो इस शक्ल में आया। पहले ये बड़ा ही प्रोपराइटरी था और बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि ये अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट और नासा है उनके लिए था। खैर, अब नेक्स्ट, ये उस जमाने में ईमेल एक इनोवेशन, आज के दौर में तो ईमेल तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन पहले ये थॉट आना भी एक बहुत बड़ा एक काम है, जो कि इस शख्स जिसका नाम है शिवा अय्यादुराई, जो वटेवर, इंडियन, जो कि अमेरिका में काम करता था आरपानेट के साथ, उसने ये ईमेल्स का मैकेनिज्म डिवाइस किया, इनोवेशन की, कि जी इंटरनेट के ऊपर डेटा को ईमेल की शक्ल में भी सेंड और रिसीव किया जा सकता है। उसके बाद सोशल मीडिया इस लिस्ट में तकरीबन मिड पे आता है। सोशल मीडिया आज के ज़माने का एक लाइफलाइन बन गया लोगों के लिए। लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं सोशल मीडिया पे, लोग बिजनेस करते हैं, लोग सोशल मीडिया पे, मजहबी लोग अपनी तबलीग करते हैं, और जिन लोगों ने आपको नफरत फैलानी होती है वो भी इसी सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब इसकी कई एग्जांपल्स हैं। फेसबुक यूज़ करते हैं आप, ट्विटर आप यूज़ करते हैं, आप पहले स्काइप यूज़ किया करते थे, अभी भी लोग यूज़ करते हैं। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम 1997 में इसका आइडिया किसी ने सोचा था, और फिर उसने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया था 6 डिग्रीज के नाम से। द नेम ऑफ द पर्सन इज एंड्रयू वाइनराइच, जो कि अमेरिकन बॉर्न जर्मन है। उसने ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था 6 डिग्रीज के नाम से। तो आजकल इसका कोई नाम नहीं है, शायद इस वजह से कि इनोवेटिव तो ये था आइडिया, लेकिन अब ये कई दूसरे डिराइव्ड फॉर्म है सोशल मीडिया की, जो कि इन्फ्लुएंस कर गए हैं असल आइडिया को। बहरहाल, इसको एक ज़रूर आप कह सकते हैं कि इस बंदे को सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि आजकल आपकी जो डेली लाइफ टाइम है, ख़ास तौर पे ये लॉकडाउन के दौरान, वो सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते रहते हैं मुसलसल, ना सिर्फ अपने कंप्यूटर्स में बल्कि अपने सेल फोन्स में भी, वो इसको ट्रिब्यूट जाना चाहिए एंड्रयू वाइनराइच। देन एक और इनोवेशन थी इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशंस, और ये थी कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज को आप वैसे तो शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूनिक अंदाज में लोगों की शनाख्त का एक ज़रिया भी बनाया जा सकता है। तो वो RFID के नाम से, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा इसको, माउस मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इस वजह से पता नहीं चल पाता। RFIDs, वही रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी, फिर उसके बाद इंफ्रारेड आईडीज भी आ गए, लेकिन ये एक्चुअली ये इनोवेशन नई चीज़ नहीं है। ये 1948 में ये इनोवेशन बन चुकी हुई थी। जिस शख्स ने ये आइडिया यूज़ किया था वो था हैरी स्टॉकमैन। रेडियो वेव्स पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इनोवेशन ये थी कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज के जरिए आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय मेकिंग यूनिक फ्रीक्वेंसीज। फिर उसी को एक जदीद फॉर्म में 1950s में बार कोड्स की शक्ल में नॉर्मन वुडलैंड नामी शख्स ने, along with another associate बर्नार्ड सिल्वरमैन, और आप देखेंगे कि ये बार कोड्स का जो सिलसिला है वो उसमें 2 या 3 जनरेशन्स गुजरी, फिर उसके बाद ये जनरेशन आ गई जो कि बार कोड की तरह से ही है, लेकिन आप उसे QR कोड कहते हैं। QR कोड मीन्स क्विक रिस्पॉन्स कोड। फिर उसके बाद NFC टैग्स का दौर आता है, और इस डिस्कशन को जल्दी जल्दी अब समेटते हैं। फ्लैश ड्राइव्स का दौर है, जो कि पहले तो वो टेक्नोलॉजी की इनोवेशन थी जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, वो थी USB। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। तो बुनियादी तौर पे कंप्यूटर में वो जो सीरियल बस होती है या सीरियल पोर्ट होती है, ये उसी की एक इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म थी, लेकिन इसका बेनिफिट ये था कि इट कैन सपोर्ट मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम। वरना जो सीरियल बस होती थी, सीरियल पोर्ट्स वगैरह, वो
बहुत लिमिटेड अंदाज में डिवाइसेस को सपोर्ट करती थी। तो ये यूनिवर्सल सीरियल बस एक तो स्पीडियर प्रोटोकॉल और दूसरा ये कि मल्टीपल डिवाइसेस का सपोर्ट। तो इसी को यूज करके फिर अब जितने भी डिवाइसेस आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं वो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। अब बहुत ही रेयर हो गया कि किसी कंप्यूटर में आपको पैरेलल पोर्ट्स या सीरियल पोर्ट्स की कोई कहानी नजर आए। तो यूएसबी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यूएसबी ने अपनी डाउन साइजिंग की वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी की वजह से उन सबको तकरीबन रिप्लेस कर दिया। तो ये जो फ्लैश ड्राइव्स हैं, जिनको आप यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं या थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव कहते हैं, ये भी यूएसबी की कम्युनिकेशन के जरिए आप इन्हें एक्सेस करते हैं। ये भी इनोवेशन है। यूएसबी का जो है वो भी, ये कॉन्सेप्ट, ये भी एक इनोवेशन था। फ्लैश ड्राइव्स भी इनोवेशन है। on that came something like at the end of the previous century 1999 में। और फिर जो बिल्कुल जदीद किस्म की इस लिस्ट में बॉटम पे इसलिए लिखी हुई है कि ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट एक है, लेकिन ऑल्दो के इसको भी आए हुए तकरीबन 8-10 साल हो चुके हैं। दैट इज द यूज ऑफ 3D प्रिंटिंग। इसका इनोवेटिव आइडिया नया नहीं है, वो 1983 का, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करके कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना वो लेटेस्ट दौर में ही हो सका। कुछ और इनोवेशंस हैं लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑल्दो कि ये आज के दौर की लेटेस्ट एक मेथडोलॉजी है, लेकिन ये इनोवेशन बहुत पहले से हो चुकी थी। इसका कॉन्सेप्ट पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका था 1960s में। वंस अगेन वही कंपनी है ARPANET, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था, उसी तरह से इस कंपनी में जोसेफ कार्ल नाम के एक शख्स ने क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक आइडिया फ्लोट किया था और इम्प्लीमेंट भी किया था। और फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। और IoT में आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत काम हो रहा है, ऑल्दो कि 1999 से इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रैपिडली काम हो रहा है। एंड इफ आई कैन टेल यू अ सीक्रेट इन लाउड वर्ड्स, दिस इज द फ्यूचर। आप अपने प्रोफेशन को मुख्तलिफ चीज़ों पे फोकस करते हैं या फ्यूचर में सोचते हैं कि जी किस में काम करना चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वट एवर। तो आई कैन सजेस्ट अ फ्यू पीपल इफ दे वांट टू लिसन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द फ्यूचर। आप इस मेथडोलॉजी पे, जो कि एक इनोवेशन के तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं, इस पे अगर आप काम करें, ये इनोवेशन जाती है केविन एस्टन के नाम। और आखिर में जो इनोवेशन हमने यहाँ लिखी हुई है वो बिट करेंसीज या वर्चुअल करेंसीज के नाम से है। और जो मेथडोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है वो ब्लॉकचेन के नाम से जानी जाती है। तो इस पे अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह हम आइंदा एक लेक्चर में पूरी बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक फ्यूचर है। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान में भी और जनरली वर्ल्ड में भी अभी ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि मनी की ट्रांजैक्शंस करनी है और वो मनी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो दैट इज़ वेरी सस्पिशियस। कम अज़ कम पाकिस्तान में लोग मनी में उस वक्त बिलीव करते हैं जब वो उनके हाथ में आ जाए या उनके पॉकेट में आ जाए, तब वो मुतमईन होते हैं कि जी ये रकम हमारी है। लेकिन जो रकम उनके पास मौजूद ना हो और उनको कहा जाए कि आपकी रकम है, वो उसके मतलब काफ़ी सस्पिशियस होते हैं, बड़े फियरफुल होते हैं। और ख़ास तौर पे वर्चुअल करेंसी जिसकी की तो कोई शक्ल भी नहीं है, ये तो जस्ट कोई बाइनरी डिजिट्स हैं जो किसी की ओनरशिप में चले जाते हैं और वो उनको ट्रांसफ़र करके किसी और की ओनरशिप में भेज देता है। तो दैट्स वाई अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जो नियर फ्यूचर है वो IoT का है, और थोड़ा सा रिमोट फ्यूचर पाकिस्तान के हिसाब से वो 5-7 साल के बाद। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट दी कि जी 5-7 साल लगेंगे, ये हो सकता है कि यू नेवर नो कि काम कितना स्पीड अप हो जाता है। फॉर एग्जांपल आजकल लॉकडाउन है कोरोना वायरस की वजह से, तो लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि वो घर से बाहर निकलें ही ना, और अगर निकलें तो दे शुड बी वेयरिंग प्रोटेक्टिव मास्क्स, ग्लव्स, और वो अपने आप को घर आके साफ सुथरा भी करें, सैनिटाइज भी करें। तो सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है कि जी आपको बाहर इसलिए निकलना पड़ता है कि आपको बाहर से सामान खरीदना है, और सामान खरीदने के लिए आप पैसे पे करते हैं।
तो ये भी एक ओपिनियन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसके पीछे एविडेंस है कि जी जो करेंसी नोट हमारे मुल्क में सर्कुलेट होते हैं वो कैरियर बन जाते हैं वायरसेस के। वैसे भी आप देखते हैं कि जी जो करेंसी नोट हमारे मुल्क में कम से कम होते हैं, जब तक आप उन्हें बैंक से ना लें वो तब तक नए नहीं होते, बहुत पुराने फटे पुराने, उनके ऊपर स्कॉच टेप्स लगी होती हैं उनको जोड़ने के लिए, और बड़ी रफ सी शेप में होते हैं। तो वन कैन ऑल्सो बिलीव कि ये मुख्तलिफ लोगों के हाथों में से होते हुए आप तक पहुंचते हैं। तो जहाँ कहीं भी कोई बीमार आदमी है वो अपने खांसने से या अपनी बॉडी की स्क्रीशंस के ज़रिए या स्वेट के ज़रिए अपने वायरसेस या बैक्टीरिया वो इन करेंसी नोट्स में मुंतकिल कर देते हैं, और फिर वो सर्कुलेट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मनी की रैपिड सी ट्रांजैक्शंस होती हैं। लाइक आप गैस स्टेशन पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ से पेट्रोल आप खरीदते हैं, आप रकम देते हैं, उसका आपको बकाया रकम मिलती है। तो वो सारे जितने भी करेंसी नोट हैं वो उन्होंने हाथ में ही पकड़े होते हैं। वहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं जो इर्द गिर्द आपके फिर रहे हैं, खांस रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, तो दे आर स्प्रेडिंग वायरसेस। तो वो वायरस आप तक, आप अपने नाक कान को तो महफूज कर लें, लेकिन आप जो करेंसी नोट लेते हैं वो उसके साथ भी वो वायरसेस होते हैं। और आप अगर कोई प्रोटेक्टिव मेजर ना करें तो वो करेंसी नोट जहाँ भी कहीं आप जेब में रखेंगे या वॉलेट में रखेंगे या दोबारा आपको पेमेंट करने के लिए हाथ से निकालेंगे तो वो आपको वायरस, और फिर आपको बेध्यानी में आप वही हाथ अपने मुंह को लगाते हैं इचिंग करने के लिए, नोज को लगाते हैं या आंखों को लगाते हैं, या किसी से आप हैंडशेक करते हैं गलती से, या घर की चीजों को वही हाथ आप लगाते हैं, तो वो फिर एक एक्सप्लोसिव सी एक स्प्रेड बन जाती है वायरस की। तो आई सजेस्ट कि आप करेंसी नोट्स को किसी तरीके से जो है ना सैनिटाइज किया करें। मसलन आप ये कर सकते हैं कि आप करेंसी नोट को, जिस तरह आप अपने कपड़े प्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन से, तो आप अपने करेंसी नोट्स को भी इसी तरह से थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर आप आयरन प्रेस करें तो उसमें जो चांसेस हैं वायरसेस के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस हवाले से मैं वर्चुअल करेंसी की बात कर रहा था कि वर्चुअल करेंसी उन तमाम प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है जो कि फिजिकल करेंसी क्रिएट करती है, बट ऑन द अदर साइड ऑथेंटिसिटी बहुत इसमें लैक करती है। जी, यहाँ तक की डिस्कशन आपके पल्ले पड़ी, इफ यू कुड अंडरस्टैंड, कुछ बताएं या मुश्किल थी? एनीबॉडी, आप बताएं। डिस्कशन ठीक थी, इजी थी, समझ आई? प्लीज स्पीक अप। आप लोगों का साथ में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। जी, अली हमजा भी आया, मैं वेरी गुड। अली हमजा आप ही बताएं, कुछ समझ आई कि नहीं? जी, अब्दुल्ला साहब हैं, अब्दुल्ला आप बताएं, कुछ समझ आई? मुझे लोगों को जगा के लाना पड़ता है। जी प्लीज टेल मी, बात समझ आई कि नहीं? अनिका याकूब बहुत ही खामोश हैं। जी बताएं बेटा आप। सर मुझे इतनी सही समझ तो नहीं आई है, बट लास्ट मेरा एक तो सबसे ये बड़ा मसला था कि मेरा लेक्चर जो है वो मैंने लेट ज्वाइन किया क्योंकि मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला क्लासरूम के जैसे आता है। तो मुझे लिंक मिला ही नहीं था। मैंने बाद में क्लास को चेक किया तो वो आई हुई थी। तो ऑलमोस्ट मैंने हाफ एन आवर लेट ज्वाइन किया। तो जो तो बाद बेटा ये में तो लिया। हमारी रूटीन बन चुकी है। वैसे तो जब क्लासरूम में हम होते थे, ये जी बिफोर दिस लॉकडाउन, तो लोग खुद ही क्लासरूम में पहुंचे होते थे। टीचर भी अब कोई अनाउंस तो नहीं करता था कि जी टीचर आ रहे हैं तो सारे आ नहीं, जाएं। अब एक्चुअली सर देखें, जब भी वो ये लिंक जो आता ये है जो ना तो नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपको लिंक आ गया क्लास का। तो वो नोटिफिकेशन नहीं मिला तो मैं इसी में थी कि बेटा ये नोटिफिकेशन देखें, आ नहीं रहा। ये हमारी जी रूटीन बन चुकी है। अब हम ऑनलाइन लेक्चर के लिए आप देख रहे हैं, इससे पहले मिड एग्जाम के लिए भी ये होता था कि जो गूगल क्लासरूम है उसमें मैं ये लगा देता होता हूँ, और वो तकरीबन 5 मिनट्स तकरीबन जो है ना वो अर्ली मैं लगा देता होता हूँ।
बट इट हैपन्स कि वो गूगल क्लासरूम में थोड़ा सा कोई ना कोई नेटवर्क ट्रैफिक स्लो है, इस वजह से वो जी, एग्जैक्ट 10 टाइम पे बजे मुझे वो रिजल्ट। मिली है। 10 बजे मुझे तो नोटिफिकेशन दैट मिला है। वो वैसे भी हमने लेक्चर जो है वो जो टाइम है उसमें हमने शुरू किया था 9:30 पे, लेकिन एक्चुअली जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो मैंने को 10 मिनट लेट ही शुरू की थी, क्योंकि उस वक्त लोग कम थे, आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे। तो आप आइंदा के लिए याद रखें कि आपका अगर लेक्चर टाइम 9:30 है तो आप 9:25 पे गूगल क्लासरूम में पहुंच जाएं, और द मोमेंट यू सी द लिंक यू फॉरन आप उसको क्लिक कर दें। तो जी कोई सर। समझने में कोई प्रॉब्लम और अदर देन दैट कि आप लेट ज्वाइन करते हैं? नहीं, लेक्चर मुझे कुछ मतलब अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन काफी है, लेकिन मैंने खुद भी अभी ठीक से सही बात जो है वो लिया नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग जरूर पढ़ूंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल, हुआ ये तो रिकॉर्डिंग का ये फायदा है कि जो डेफिनेटली। चीज आप समझने में मिस हो जाती है, आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेते हैं, और आपके पास जी पूरी की पूरी राइट्स और ऑप्शंस हैं। यू कैन आस्क क्वेश्चंस बाय टाइपिंग देम इन गूगल क्लासरूम, यू कैन टाइप देम इन फेसबुक ग्रुप, एंड यू जी सर। कैन आस्क इन द लेक्चर, इन बिटवीन द लेक्चर जो गैप आता है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। जी जी sure। और सर काइंडली आई थिंक ये जो इनोवेशन की स्लाइड्स हमारे पास नहीं है, ये जल्दी तक कि जब हम रिकॉर्डिंग सुने ना तो सामने, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब हम सुन रहे होते हैं जो स्लाइड्स का साइज होता है वो इतना बड़ा नहीं होता कि क्लियरली स्लाइड्स को देख सकें, तो स्लाइड गुड, हमारे लैपटॉप में होंगी तो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छी सजेशन है। अच्छा, वैसे मैंने ये स्लाइड्स पीडीएफ फॉर्म में अपलोड की हुई हैं, लेकिन कहाँ द सर? प्रॉब्लम इज के उनमें ये टैग्स ऐड नहीं हुए हुए जो कि लेक्चर वीडियो लेक्चर के लिए ऐड होते हैं। तो मैं ये करूँगा कि आज ही आपके लिए, चूंकि ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप की भी, तो आई विल अपलोड दी फॉर्मेट जो कि मैं यहाँ पे वीडियो में यूज कर रहा हूँ, उसमें कुछ अपडेटेड इंफॉर्मेशन भी है। जी ओके, सर। let's discuss about another contemporary issue, which will be the last one to discuss in this series, this session. It will be entrepreneurship. What is entrepreneurship? अब entrepreneurship में हमें जो बातें डिस्कस करनी है और जो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर हम समझ चुके होंगे, वो ये होगा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है, और एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है, और फिर नेक्स्ट ये कि जी ये एंटरप्रेन्योरशिप अगर कोई करनी है किसी ने तो कैसे की जाए, और जो ऑलरेडी हमारे सामने कुछ बहुत ही मशहूर किस्म के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके मुतल्लिक हम जानेंगे। एक चीज ध्यान में रखें कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप उसी वक्त तक इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप होती है जब तक कि वो फ्रेश हो, जब तक कि वो यूनिक हो, फॉर द फर्स्ट टाइम हो। लेकिन अगर वो ऑलरेडी हो चुकी हो और आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें तो फिर वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं रहेगी। अभी डिटेल में हम इस पे भी बात करेंगे, इसको भी समझना है क्योंकि स्टार्टअप भी एंटरप्रेन्योरशिप ही है। और एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हमने कंटेम्पररी इशू क्यों समझ लिया। और एक बड़ी अहम डिस्कशन जो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इस तक पहुंचे बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, कि हमारे लिए यानी आप लोगों के लिए फ्यूचर में ऐसे कौन से डोमेन्स हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रहते हुए आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। पहले हम ये देखते हैं जी कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है। वेरी सिंपल, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड इट। एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग इनोवेशंस। यहाँ तक भी बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन इसको आगे भी हम लेके चलते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इनोवेशन, इनोवेशन पे हमने कहा था कि कोई भी नया आइडिया, कोई भी नया कॉन्सेप्ट। तो ये जहन में रखें कि कोई भी इनोवेशन जब आपके जहन में आती है तो ये जरूरी नहीं होता कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें। यू कैन वेट फॉर द इनोवेशन और यू कैन लेट अदर पीपल इम्प्लीमेंट दैट इनोवेशन। बट स्पेसिफिकली अगर आपकी इनोवेशन किसी बिजनेस की शक्ल में इंप्लीमेंट होती है, यानी आपने कोई एक आइडिया, नया आइडिया सोचा और आपने फिर सोचा कि इस आइडिया को बिजनेस या कमर्शियल
वेंचर की शक्ल में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो फिर वो कहलाएगी एंटरप्रेन्योरशिप। शर्त ये है कि आप जो आइडिया लेके चल रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, वो आइडिया इनोवेशन रहा हो, इन्हें नया आइडिया हो। अब आप अगर सोचें कि जी मैं एक बुक शॉप खोल लेता हूँ, बिजनेस, तो आप उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहना शुरू कर दें तो वो बात गलत होगी, क्योंकि बुक शॉप्स तो सदियों से खुलती चली आ रही हैं, इसमें नई चीज तो कोई भी नहीं है। तो इट मस्ट बी एन इनोवेशन कि जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई करने लगे हैं, इट मस्ट बी एन इनोवेशन, नया आइडिया, नया कॉन्सेप्ट। अभी कुछ एग्जांपल्स भी हम इसकी देखेंगे। अभी एक डेफिनेशन और भी है जो अगर आप याद रखना चाहें, कई लोग डेफिनेशंस को रट लेते हैं, तो ठीक है, रटने से चीज याद तो रहती है, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप डेफिनेशंस को रटने की बजाय पहले समझें और फिर उन्हें आप जहन नशीन करें। रटना जो है वो कहीं ना कहीं वक्त आने पे जो है ना दगा भी दे जाता है आपको, एकदम बात अगर भूल जाए तो फिर वो रटी हुई चीज जो है वो आपको धोखा दे जाती है। लेकिन जो चीज आपने समझ के जहन में रखी होगी, वो वक्त पढ़ने पे जब आप उसे रिकॉल करेंगे तो वो रिकॉल भी हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक दूसरी डेफिनेशन है, द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस। इसको यहाँ तक लिया आपने, टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस along with any of its risks in order to make a profit। तो बात वही है जो ऊपर की डेफिनेशन में थी, उसमें सिर्फ इतना कह के जान छूट गई कि जी बिजनेस और कमर्शियल वेंचर, लेकिन यहाँ पे वो बिजनेस और कमर्शियल वेंचर में एक वार्निंग भी एक तरह की आपको नजर आएगी कि जी बी रेडी, कि इस वेंचर को शुरू करने के लिए जो रिस्क्स इन्वॉल्व होंगे वो भी आपको जहन में रखना है, और अगर वो रिस्क आप सही तरह से टैकल कर लेते हैं तो यू कैन गेट लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि हर नई चीज जब बिजनेस में आती है, प्रोडक्ट या सर्विसेज की शक्ल में, तो वो आप उर्दू में मुहावरा बोलते हैं जी, हाथों हाथ बिकती है। वो बहुत ज्यादा पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती है, परचेज करती है। एक्सक्यूज मी। अब कुछ फॉर एग्जाम्पल हमें कहना चाहिए, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल नहीं कह रहा, क्योंकि एग्जाम्पल और चीज होती है और दिस इज लाइक कहना कुछ और होता है। तो ये जो अभी मैंने बात की है, ये एक प्रॉपर लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं और कौन सी चीज़ें जिनके साथ फॉर एग्जांपल नहीं लिखना चाहिए। तो वो अगला, यानी इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का नाम होगा टू बी स्पेसिफिक। ठीक, अब ये आपके सामने सो कॉल्ड एग्जाम्पल्स हैं या कुछ नेम्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप्स के, जो कि बेस करते हैं किसी ना किसी इनोवेशन पे। लाइक मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स जो है वो कोई नई चीज़ तो नहीं है, वो 1950s में, और किसी एक हिस्टोरियन ने ये भी लिखा है कि 1940s के एंड पे ये अमेरिका में मैकडोनल्ड्स के नाम से फूड रेस्टोरेंट, जिसको आप कहते हैं फास्ट फूड या जंक फूड रेस्टोरेंट, उसके तौर पे ये इंट्रोड्यूस हुआ। इस इनोवेशन से या इस एंटरप्रेन्योरशिप से पहले फास्ट फूड और फास्ट फूड की चेन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब तो हमें कई नामों से नजर आते हैं, मैकडोनल्ड्स है, KFC, AFC और नंबर ऑफ अदर्स। तो ये एक इनोवेशन के तौर पे 1950s में वेल एस्टेब्लिश्ड एक रेस्टोरेंट, पर उसके बाद उसकी चेन्स बनी। तो ये आइडिया नया था। इससे पहले बर्गर्स पहले भी एग्जिस्ट करते होंगे, सैंडविचेस एग्जिस्ट करते होंगे, फ्रेंच फ्राइज, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जी इनको एक ही जगह पे इकट्ठा फास्ट फूड के तौर पे लोगों को बेचा जाए। तो वो एक ट्रेडिशनल किस्म का रेस्टोरेंट भी नहीं है कि जिसमें आप बैठ के ऑर्डर देते हैं, बल्कि इसमें ये है कि आपको काउंटर पे जाके सेल्फ सर्विस करना पड़ती है, खुद ही ऑर्डर देना पड़ता है, खुद ही पेमेंट काउंटर पे करें और वहीं से आप कलेक्ट कर लें। और ये भी हो सकता है कि आप कुछ सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ नज़र आती है, वहाँ बैठ के आप खाएं। और या फिर ये हो सकता है ज़्यादातर जो इसका कॉन्सेप्ट है कि जी आप वहाँ जाके परचेज करें एंड देन यू टेक इट अवे होम या ऑफिस, जहाँ पे कहीं है, लेकिन रमज़ान के महीने में नहीं।
और लॉकडाउन के दरमियान भी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट एक इनोवेशन था और उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट भी किया है। मेरे ख्याल में मैकडोनल्ड्स का जो ओनर था उसका नाम ही यही था, मैकडोनल्ड्स। फिर इसके बाद कुछ और एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, यानी बिजनेसेस हैं जो कि इनोवेशन की शक्ल में आई। यूपीएस, यूनिवर्सल पोस्टल सर्विस, ये जो कैरियर जो कोरियर्स होते हैं, और इसी के पैरेलल एक और भी है फेडेक्स, ये भी यहाँ पे है। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया की शक्ल में डाकखाने या पोस्ट ऑफिस तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन दैट वुड बी अ स्लो प्रोसेस टू सेंड अ मेल और अ पैकेज। तो ये किसी ने आइडिया एक उठाया कि जी अगर लोगों को लिमिटेड टाइम के अंदर उनकी पैकेजेस डिलीवर कर दी जाएं डेस्टिनेशंस पे, लाइक विद इन द सेम डे, विद इन द 24 आवर्स, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप अपना पैकेज भेजना चाहें, तो ये यूपीएस और फेडेक्स जो है इंटरनेशनल एक इदारे की हैं, इनके अपने एयर फ्लीट्स हैं, इनके अपने हवाई जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ हैं, और इनके कैरियर्स हैं रोड्स पे चलने वाले। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जिस किसी ने ये आइडिया दिया, उससे पहले ये आइडिया नहीं था, तो ये एक इनोवेशन भी थी। और चूंकि ये बिजनेस में इम्प्लीमेंट हुई, तो आप कह सकते हैं कि इसका एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। ये माइक्रोसॉफ्ट भी इसी तरह से ही है। माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन थी और एंटरप्रेन्योरशिप थी बिल गेट्स की। तो वो तकरीबन तने तनहा सिर्फ उसके साथ एक या दो उसके एसोसिएट्स थे, लेकिन ज़्यादा थिंकिंग और जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल गेट्स की थी। दे इनोवेटेड इन द सेंस कि ये सॉफ्टवेयर की बिल्कुल इब्तदाई दौर है 1980s की। तो उसने ये सोचा कि जी कोई कंपनी बनानी चाहिए और उस कंपनी से सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करके सेल किए जाएं। और ये उस वक्त उसके जहन में नहीं था कि जी उसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही बनानी है, लेकिन जो फर्स्ट चीज़ जिस पर उसने काम किया वो एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस के नाम से। और वो भी उसने खुद नहीं बनाया था, उसने डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस को परचेज किया था एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है आईबीएम, वहां से। और आईबीएम वाले खुद अपने डॉस में थोड़े से स्लो थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स है उसने इस डॉस को परचेज करके थोड़ा सा एनहेंस किया और उसे सेल करना शुरू कर दिया एज अ सिंगल यूजर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो बाद में फिर जब उसकी कंपनी बढ़ती गई, उसकी सेल्स बढ़ती गई, कंपनी बढ़ती गई, तो फिर उसने विंडोज के ऊपर काम किया। और वंस अगेन ये विंडोज भी असल में बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी आइडिया नहीं है, इनोवेशन नहीं है। ये इनोवेशन भी इनफैक्ट आईबीएम में हो चुकी हुई थी, और आईबीएम वाले इनोवेशन तो कर चुके थे लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे थे। तो उनकी जो विंडोज थी उनको उन्होंने नाम दिया हुआ था PS2, पर्सनल सिस्टम 2। आई एम सॉरी, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था OS2, ऑपरेटिंग सिस्टम 2। लेकिन वो इतना ज़्यादा मार्केट नहीं हुआ, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ जितना विंडोज़। और फिर विंडोज़ के ऊपर आपको लगातार उसकी एनहेंस, उसकी नई से नई वर्जन्स नज़र आती रहीं। उसके बाद ये गूगल भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, याहू। तो ये इनोवेशन पहले तो सर्च इंजन की शक्ल में थी, लेकिन अब आप देखते हैं ये जो गूगल वालों ने गूगल क्रोम बनाया हुआ है और उन्होंने यूट्यूब को भी परचेज किया हुआ है। तो ये एक अच्छा खासा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि जो गूगल वालों ने इस्टेब्लिश कर लिया है। याहू वालों ने पहले से तो ये ज़्यादा मशहूर थे अपनी ईमेल्स की सर्विसेज से, लेकिन इनका भी एक सर्च इंजन है और प्रॉबेबली ये भी कुछ गूगल लाइक कुछ एक्टिविटी में मसरूफ हैं। नाइके, ये भी एक जनरल सी एग्जांपल है। ये इनोवेशन है। इनोवेशन ये थी कि जो स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं, स्पोर्ट्स वियर गारमेंट्स वगैरह, उनको किसी एक जगह पे सेल किया जाए। तो ये नाइके के नाम से उन्होंने स्पोर्ट्स वियर लाइक ख़ास तौर पे जो नाइके के शूज़ होते हैं, फुटबॉल शूज़ हैं, क्रिकेट शूज़ भी हैं, और इनके जो अमेरिकन के बेसबॉल शूज़ हैं, और इवन के नाइके के जो है ना वो माउंटेनियरिंग या हाइकिंग शूज़ भी हैं। दे आर वर्ल्ड क्लास।
तो उन्होंने ये आइडिया पहले सोचा और फिर उसको एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ल में सामने लेके आए। तो फेडेक्स भी उसी तरह जिस तरह ये यूपीएस है, और फिर उसके बाद एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनोवेशन, और फिर उसके बाद उससे भी ज़्यादा किस्म का एंटरप्रेन्योरशिप वो डिज्नी की है। डिज्नी एक शख्स का नाम है, वॉल्ट डिज्नी, जो कि पहले तो शो बिजनेस में था, और टू बी वेरी प्रिसाइज वो हॉलीवुड की मूवीज में था, कार्टूनिस्ट था। तो अर्ली 1920s और 30s में जो मूवी बनती थी उनमें कार्टून मूवीज बहुत मशहूर हुई थी, लाइक वो पॉपाय द सेलर, और फिर उसके बाद वो फनी किस्म के कार्टून्स लाइक डोनाल्ड डक, मिकी माउस। तो ये मिकी माउस और डोनाल्ड डक, ये और इसी तरह से डेफी, ये बेसिकली इनोवेटिव आइडियाज थे डिज्नी के। तो बाद में उसने ये सोचा कि इसी कार्टून कैरेक्टर्स की बेस पे कंपनी बनाए, और इनकी जो एनिमेशंस या कार्टून्स हैं उनको मार्केट किया जाए, सेल किया जाए। और फिर जब उसकी एम्पायर बन गई, वो एक बहुत अच्छा टीवी प्रोड्यूसर बन गया, फिर उसने अपनी नेक्स्ट सोच ये की कि ख्वाबों की दुनिया को हकीकत की शक्ल दी अम्यूजमेंट पार्क की शक्ल में। तो वो डिज्नीलैंड के नाम से उसने जो अम्यूजमेंट पार्क बनाया कैलिफोर्निया स्टेट में, वो एकदम एक बहुत बड़ी सक्सेस बन गई। तो ये एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी एग्जांपल के तौर पे इसको जिक्र किया जाता है, डिज्नीलैंड। अब आप देखें कि डिज्नीलैंड जो है वो सिर्फ अमेरिका तक ही लिमिटेड नहीं रहा, अमेरिका की मुख्तलिफ 2-3 स्टेट्स में बना, फिर उसके बाद यूरोप में भी डिज्नीलैंड की एक ब्रांच बन गई, और जापान में भी, टोक्यो में भी डिज्नीलैंड का बन गया। पाकिस्तान में शायद इसलिए नहीं बन सकता कि पाकिस्तान के अंदर अम्यूजमेंट पार्क्स या थीम पार्क्स का जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनली वो स्टैंडर्ड नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ज़्यादा जो है वो एक्सटेंसिव है। पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तान के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इस किस्म का थीम पार्क जिस तरह की डिज्नीलैंड है वो पाकिस्तान में बन सके। लेकिन हमारे यहाँ इनोवेशंस या एंटरप्रेन्योरशिप्स की शक्ल में दूसरे अम्यूजमेंट पार्क्स वो जगह जगह मौजूद हैं, लाइक जॉयलैंड है और फनलैंड है, और ये जो आपको मिलता है नेशनल बैंक पार्क में, फिर आपको अम्यूजमेंट पार्क्स मिलते हैं जो जू के अंदर भी हैं, वो मुख्तलिफ जगह पे हैं। लेकिन अब ये आप अगर पाकिस्तान में बनाएंगे तो ये इनोवेशन नहीं होगी, ना ही एंटरप्रेन्योरशिप होगी, क्योंकि इस किस्म की इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप ऑलरेडी हो चुकी है डिज्नी के नाम से। तो अगर आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं इसमें, तो यू विल हैव टू थिंक समथिंग न्यू। मसलन आपको सोचना पड़ेगा कि जी कोरोना लॉकडाउन के दौरान कैसे अम्यूजमेंट पार्क्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद ये एग्जांपल है फोर्ड की, ये अमेरिका का जो सबसे पुराना कोई गाड़ियां बनाने का एक इदारा है, फोर्ड मोटर्स। फिर उसके बाद जनरल मोटर्स भी है। इंडिया में आपको ये नाम नजर आते हैं, अंबानी, बिरला। और फिर ये फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट इनोवेशन थी ऑनलाइन शॉपिंग की, एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, अप टू दी फूड आइटम्स, स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स वियर, जो नॉर्मल वियर है, लिबास, कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन शॉपिंग, ये इंडिया के अंदर इन्होंने, फ्लिपकार्ट ने इसकी एंटरप्रेन्योरशिप की। और ये एक बहुत मशहूर नाम है लेवाई स्ट्रॉस का। ये लेवाई स्ट्रॉस जो हैं वो लोग हैं जो कि जीन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, ख़ासतौर पे जीन्स की ट्राउजर्स वगैरह। तो जीन्स तो वैसे कपड़े का नाम है, लेकिन वो ट्राउज़र का नाम मशहूर हो चुका हुआ है एक मिसनॉमर के तौर पे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इसे एंटरप्रेन्योर बिजनेस की शक्ल में लेवाई स्ट्रॉस ने इसको अडॉप्ट किया था इन अमेरिका। ये लेवाई स्ट्रॉस बंदे का नाम है जो कि यूरोप से इमिग्रेट करके यूएसए गया, और वहाँ उसको नज़र आया कि जी लोग जीन्स पहनते हैं, ख़ासतौर पे वो यंकी स्टाइल के कैजुअल सा वियर है, लेकिन आमतौर पे ये छोटी मोटी कंपनीज बनाती हैं। तो एक बड़ी कंपनी की शक्ल में, बहुत ही डिज़ाइनर आउटफिट की शक्ल में फॉर द फर्स्ट टाइम ये लेवाई स्ट्रॉस ने इंट्रोड्यूस किया था। ये यू हॉल के नाम से भी बिजनेस एक एंटरप्रेन्योरशिप है,
और ये तकरीबन 1950s से या 60s से चली आ रही है। ये कॉन्सेप्ट है कि आप जिस तरह रेंट ए कार का बिजनेस है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन रेंट ए कार को यूज़ किया जाता है, लोग पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो यू हॉल है, इट इज़ अ बिजनेस इन अमेरिका जिसमें लोग, ये कंपनी आपको ट्रक्स जो है वो रेंट पे देती है, और वो भी ऐसे कि आप खुद उन ट्रक्स को ड्राइव कर सकते हैं। यू हॉल का मतलब वही है, यू मीन्स यू, आप, और हॉल का मतलब है चलाना। तो आप अपनी गाड़ी लें और आप खुद ही चलाएं, जिस तरह रेंट ए कार में भी हो सकता है। लेकिन इस यू हॉल का जो टारगेट है वो पैसेंजर्स नहीं है, बल्कि सामान। ट्रक्स में आप अपने घर का सामान शिफ्ट करना चाह रहे हैं एक शहर के अंदर, या एक शहर से दूसरे शहर, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो आप ये यू हॉल का जो ट्रक है, मुख्तलिफ साइज़ के ट्रक्स हैं डिपेंडिंग कि आपको कितनी वेट या कितना सामान उसमें मूव करना है। तो छोटे ट्रक से लेके बड़े ट्रक्स तक हैं जो कि आप किराए पे ले सकते हैं। और मेन बेनिफिट इसका ये है कि जी आपने जहाँ से किसी आउटलेट से ट्रक रेंट पे लिया, हायर किया है, वो ज़रूरी नहीं कि अब आप वापस आके उसको वहीं पे उसी ऑफिस में दें। यू कैन, जहाँ से भी आप नज़र आता है आपको यू हॉल किसी एक शहर में, और आप किसी दूसरे शहर में यू हॉल ट्रक को ले जाते हैं, तो उस शहर का जो मकामी दफ्तर है वहाँ पे आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो यू हैव टू पे फॉर द फ्यूल एंड सम एडिशनल अमाउंट, जो उनकी बिजनेस है। अदरवाइज अगर आप को नुकसान कर देते हैं गाड़ी का, तो फिर वो भी पे करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली जो आप यू हॉल लेके जाते हैं, यू आर पेइंग इनफैक्ट फॉर द फेयर और फॉर द फ्यूल। ये आइडिया एक शख्स है जिसका नाम है लेनर्ड शेन, फिनिक्स एरिज़ोना यूएसए में। ये शख्स, उसने पहली मरतबा 19 आई बिलीव के 1950s से उसमें ये बिजनेस उसने स्टार्ट किया था, और अब जो है ये एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है अमेरिका में, यू हॉल। अब ना सिर्फ ये कि ये आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि आप चाहें तो इनकी स्टोरेज जो रूम्स हैं, स्टोरेज जो इनके एरियाज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे आप अपना सामान लंबे अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए महफूज भी कर सकते हैं। आप यूँ समझ लें कि एक गोदाम है किराए पे, जहाँ पे आप किराए दे के तो सामान अपना रख सकते हैं, लॉक्ड एंड सिक्योर। ये कुछ बड़ी मशहूर किस्म की इनोवेशंस हैं जो जब तक के ये फॉर द फर्स्ट टाइम थी, तब तक तो ये इनोवेशंस नहीं होंगी। लेकिन अब अगर कोई इनके आइडिया को कॉपी करता है और उस पर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने की कोशिश करता है, बिजनेस करने की कोशिश करता है, तो वो कम से कम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहला सकती। यानी कोई अगर एक कोरियर कंपनी खोल दे और कहे कि जी ये एंटरप्रेन्योरशिप है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी, बशर्ते कि वो अपनी कोरियर कंपनी में कोई नया आइडिया इम्प्लीमेंट करता है, ट्रांसपोर्टेशन का या ऑर्डर बुकिंग का। जब तक कोई नया आइडिया नहीं होगा, तब तक वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। अब आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहिए मुझे, थोड़ा सा आप भी जरा फ्रेश हो जाएं। अब मुझे आप कुछ कंपनीज के या कुछ बिजनेसेस के नाम बताएं एज एग्जांपल्स, कि जो इनोवेशन हो और उसके बाद वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, यानी कोई बिजनेस सेटअप हो जिसमें कोई ना कोई इनोवेशन चल रही। एनीबॉडी यू कैन टेल मी। जी बताइए। सर ये करीम कंपनी जो है, जो जी जी पैसेंजर के लिए है, करीम कंपनी या उबर वगैरह। जी जी कारीम। तो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो मैंने उनमें कारीम भी लिखा हुआ है, लेकिन उलट स्पेलिंग के साथ। और इसी से मिलता जुलता एक और भी है, ऊबर। तो ये REBU नहीं है, ये असल में UBER है। और कोई एग्जांपल, लाइक एग्जांपल है OLX की। OLX भी एक इनोवेशन थी और एक एंटरप्रेन्योरशिप बन गई, बिजनेस बन गया, जिसमें आप ऑनलाइन चीज़ें सेल कर सकते हैं, चीज़ें बाय कर सकते हैं। एक और सर कॉन्सेप्ट है जी, सर KNN। ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें एक ख़ास किस्म के प्रोडक्ट्स, लाइक वो जो चिकन प्रोडक्ट्स हैं
और शायद कुछ जगहों पे वो फिश प्रोडक्ट्स भी देते हैं। तो आप रेडी टू कुक कोई अगर आप चिकन खरीदना चाह रहे हैं, यानी आप चिकन बाजार से लाएं, उसको प्रिपेयर करें, उसमें जो वक्त ज़ाया होता है उसकी बजाय ये रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स आपको दे देते हैं चिकन के। लाइक आप वो बोनलेस चिकन यूज़ करना चाह रहे हैं, चिकन के कबाब्स आप बनाना चाह रहे हैं, तो रोज़े में ज़्यादा इनका जिक्र नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये क्या जी, जेके रॉलिंग का नाम सुना हुआ आपने? ये कौन साहब है? ये जेके रॉलिंग वो शख्स है जिसने हैरी पॉटर सीरीज लिखी और फिर किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप करके उसकी सीरीज को मूवीज की शक्ल में प्रोड्यूस किया, और अब ये पूरे का पूरा इनका एक एंटरप्राइज बन गया है जिसमें मुसलसल मेरे ख्याल में 8-9 या पता नहीं कितनी उन्होंने मूवीज बना दी हैं। किसी को पता है कितनी इसकी एपिसोड्स हैं? ओके, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के नाम, यानी दुनिया भर में एंटरप्रेन्योरशिप है तो पाकिस्तानी भी कम नहीं है, वो भी बहुत ज़रखेज़ ज़हन रखते हैं, आइडियाज़ बहुत हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के नाम हैं जो कि बहुत कम जाने जाते हैं और आप इन्हें खुद भी पढ़ सकते हैं। मसलन एक सेवी ई कॉमर्स के नाम से एक बिजनेस बनाया था दो भाइयों ने, जिनके नाम थे अदील शफी एंड अदनान शफी, और ये ई कॉमर्स का है जनरल पर्पस। ये उन्होंने बनाया था कुछ 19 इनफैक्ट नॉट 19, दे बिल्ट इट इन अराउंड 2010। तो एक बहुत बड़ा एक एंटरप्राइज बिजनेस था ई कॉमर्स का, अभी भी एग्जिस्ट करता है। फिर इन्होंने इसी बिजनेस में एक प्रोडक्ट बनाया था प्राइस ओए 2015 में। ये डायरेक्टली एक ई कॉमर्स नहीं था, बल्कि इसमें एक चीज़ एडेड थी कि आप एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ वेंडर्स या मुख्तलिफ शॉप्स के रेट्स का कंपैरिजन करना चाहते हैं, प्राइस कंपैरिजन। ये कहने को बहुत आसान चीज़ है लेकिन बहुत ही मेहनत तलब काम है कि मार्केट में जितने भी वेंडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ख़ास तौर पे ऑनलाइन मार्केट में, उनकी प्राइसेस को इकट्ठा करना फॉर वन सिंगल प्रोडक्ट और यूज़र को या क्लाइंट को उनका कंपैरिजन देना, प्राइसेस को मैच करना फीचर्स के साथ, क्वालिटी के साथ, स्टैंडर्ड के साथ, और फिर उन्हें प्राइसेस ऑफर करना कि जी हम ये सस्ता यहाँ से मिल सकता है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये एंटरप्रेन्योरशिप थी इन लोगों की। अब ये आप खुद भी पढ़ लें, हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा, कि ये जो आसान तालीम के नाम से एक एंटरप्रेन्योरशिप है, ये मिस राधा मोहन लाल पाकिस्तानी है, ये उन्होंने ये एक सॉर्ट ऑफ पोर्टल बनाया था, आसान तालीम, गरीब बच्चों के लिए तालीम ऑनलाइन। एक और है जिन्होंने प्रोजेक्ट 50 किड्स बनाया, याहिया अली साहब। ये जी जो मतवसत और गुरबा के तबके के बच्चे हैं, उनकी एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए। फिर एक फोरम बना था, दो एंटरप्रेन्योर्स हैं, नायला आलम और यास्मीन दुरानी, जिन्होंने गरीब लोगों के लिए, लो इनकम लोगों के लिए डेली एसेंशियल्स की पोर्टल बनाई, शॉपिंग पोर्टल बनाई। वैसे तो शॉपिंग पोर्टल्स बहुत से होते हैं, लेकिन इसमें इनोवेशन ये थी कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कि लो इनकम कैटेगरी के लोग हैं, कस्टमर्स, और वो जो प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रहे हैं वो भी लो प्राइस कैटेगरी में हो, तो वो दे कैन बाय ऑनलाइन एंड दे कैन बी होम डिलीवर्ड एज वेल। अब देयर आर नंबर ऑफ अदर्स, लाइक हमारे ही यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपसे सीनियर्स, उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया की एंटरप्रेन्योरशिप की थी सब्जी.पी के, यानी आप ऑनलाइन सब्जी परचेज कर सकते हैं। और एक और स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उन्होंने काम किया था इस एंटरप्रेन्योरशिप पे, विच इज़ मुर्गी.पी के।
ये मुर्गी सेल करना कोई नई चीज तो नहीं है, चिकन, लेकिन ये इनोवेशन है कि जी आप इसे ऑनलाइन सेल करें। तो इन लोगों का पहले से ये बिजनेस था, यानी इनकी अपनी कोई आउटलेट्स थी जहाँ पे दे वर सेलिंग चिकन, लेकिन उन्होंने, इन बच्चों ने ये किया कि जी जो अपनी पढ़ाई की है उसको इस्तेमाल किया, बिजनेस को एक इनोवेटिव आइडिया दिया, ऑनलाइन चिकन सेलिंग का। आप ऑर्डर पे परचेज कर सकते हैं, सिंगल आइटम्स डेली यूज के भी परचेज हो सकते हैं ऑनलाइन, एंड दे कैन होम डिलीवर एज वेल। फिर ये और कई एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, ये मैं चाहूँगा कि आप अगर खुद भी इनको थोड़ा सा चेक करें, वेब पे इनको खुद पढ़ें। So in today's lecture, we have been able to understand what, first of all, we have been able to understand what innovations are. Let's go back to the initial slides. So we've been able to understand what innovation is, how you define the word innovation, and then we've been able to understand why innovations are done. Innovations have a purpose, and the purpose mainly is to provide value in your services and products. That can happen to your software products and services as well. You find new ways to provide services, software development services, and then you also gather the benefits, byproducts for yourself as well. Like you can improve your income by doing some innovation. You can increase your repute, your goodwill, and you can have a very satisfactory feeling in your hearts that you have done something new. We also discussed the domains and areas in within our computer science profession where the innovations have been going on, and we have also talked about the future domains where innovations will be carrying on, and we must think on doing some innovations in these fields like IoT, in virtual currency. We talked about some examples of innovations, very famous kind of innovations like the invention of the cell phone, transistors, the invention of the analytical engine of Charles Babbage. We talked about the innovation of radio frequency ID, you call it RFID, barcodes. Now, these are not only some general examples, but you can also find some relevance to the field of computer sciences and software, like the barcodes, the QR codes. They are some very famous innovations, flash drives, which work on USBs. Cloud computing is an innovation, Internet of Things, and then virtual currency or the Bitcoins, they are the innovations. Then after that, we talked about entrepreneurship. Entrepreneurship, what is the meaning of entrepreneurship? We were able to discuss some famous examples of entrepreneurship. In the general field, we also talked about a few of entrepreneurships being done within Pakistan. That will end our today's lecture, but we are left with some material that could not be covered, and hopefully we'll be covering it within 30 minutes of the next lecture, which will be on Thursday. So I compel you people to read these slides. I'll be uploading them. And if you could not understand anything, specific thing, then you can watch the video once again. It will be posted on the Google Classroom. And once you have seen those videos and you still have some doubts and questions, you can either type them down in the Google Classroom or the Facebook group, or you can ask me the questions at the start of the next lecture. In the next lecture, we will be talking about
the entrepreneurship process, how you can go on to become an entrepreneur. There are at least 4 genuine phases or stages which you can apply. Then we are also going to talk about some famous entrepreneurships and in with detail how they were actually innovations and how the people got on with making them as an entrepreneurship. We are also, that is the interesting part of the next lecture. We will be discussing about the future entrepreneurships. Like if you are to become an entrepreneurship, then what should be the domain? Which area should be explored and exploited? So you can do some entrepreneurship in those areas. So no less than 17 different domains that are written there. And before you come to the next lecture, I'll be giving you the slides. You can read them so that you are prepared for the next lecture. And hopefully we can finish that lecture within 30 minutes and go on to the next topic. And at the end of the next lecture, we'll also talk about why the entrepreneurship is a contemporary issue. So, and one thing more we'll be talking about, it's the famous buzzword startup. Startup are entrepreneurships, but what they are and how we go on with them or how people have been going on with them, we'll talk about that. So there's a lot of stuff that we have to complete. So if you have any questions regarding the much of material that we have discussed today, please ask your questions. The people who have another lecture after this, they can leave this after marking their attendance. And the people who don't have any lecture, I can give you 5 or 6 minutes in which we can discuss your questions or problems. So enjoy your time. Any questions? If you don't want to ask questions, or you want to say something, you can say. I'll consider that as a question. Anybody?